This wonderful day हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस that अद्भुत we समय could के hear लिए। many testimonies, बहुत सारी अद्भुत साक्षियां थी। and after many days, Pappu has come, पप्पू जो है काफी दिनों के बाद आए and we know that how he used to be in drugs and alcohol. और वो नशीली चीजों में थे, हम जानते Last हैं। 6 months, God has changed his life. He has stopped drinking. और पिछले 6 महीने से परमेश्वर उनका जीवन बदल दिया है। He has been helping in his house and his mother. और माता को घर में वो So that मदद कर is रहे हैं। our prayer and testimony. और ये हमारी प्रार्थना और साक्ष्य भी रहेगी। So pray continuously that God will, bless him and use him in the kingdom of God. लगातार प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको परमेश्वर के राज्य में And आशीष करे। when he was a small child, he died, और जो and he छोटे was थे, kept in the Sassoon Hospital mortuary. जो बालक अवस्था में थे, वो मृत हो चुके थे, ससुर में मॉर्चरी में रखा था। And taking the body and keeping in the mortuary means it was very difficult, but God revived him in that mortuary and gave him a new life. मॉर्चरी में रहना बहुत गंभीर अवस्था है, लेकिन परमेश्वर उनको वहां से भी उठाया और कार्यरत किया। So our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर And है। these are the last days, and there will be persecution, there will be problems, there will be situations. ये अंतिम दिन है जहाँ तकलीफें ताड़ना न जरूर होगी। At the same time, people of God, the love of God will be cold and cold. और इसी समय परमेश्वर का प्रेम जो है वो भी ठंडा पड़ेगा। Yesterday we were at Shobha's place, कल हम शोभा के घर में थे, but very sad that not a single brother was with me. और दुख की बात है कि एक भी भाई वहाँ पर नहीं थे, Nobody, desired to come. और किसी भाई को वहाँ आने की इच्छा So नहीं। it is a very sad thing. और बहुत दुख की बात है। We and I, when you have time, we know that somebody is going there. In your heart, there should be the zeal of the Lord. और आप अगर जानते हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आने की इच्छा होनी चाहिए। Otherwise, you will come to the church, go. There is no use of the believer if you are not going to take part in the ministry of God. अगर आप चर्च में कलीसिया में आते हैं, कार्यों में भाग लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। So, if I don't want to make, there's a saying, Hanun Marun Musalman Banwala. ये जबरदस्ती की बात नहीं है, Because I don't want to force anybody. Nobody will, be changed unless and until you have make your commitment, desire to come and serve the Lord. और ये जो है अपने आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु को आकर के सेवा में आए। So these are the last days. The Bible says in this thing, what you call Revelation, those who are holy, be holy. Those who are wicked, let them be more wicked. Those who are corrupted, let them be more corrupt. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो ज्यादा गलत है वो ज्यादा गलत में रहे, जो भ्रष्ट है One ज्यादा time, भ्रष्ट हो very जाए। few people will hear the testimonies. और बहुत कम लोग हैं जो साक्ष्य सुनेंगे। And we have 4-5 families are coming here. और 4-5 कुटुंब यहाँ आ रहे Out हैं। of that, 3 are selling vegetables. One is selling the brooms. और ऐसे कुछ लोग उसमें जो गरीब हैं, जो झाड़ू पर They all are here today. बेचते हैं, वो यहाँ पर है। They are selling vegetables वो भाई सब्जी in बेचते हैं। Wanodi. वानोडी में One sister is selling broom. एक जो है वहाँ पर झाड़ू जैसी चीजें बेचते So हैं। how much they must be earning every day? और कितनी सारी आमदनी, कितनी आमदनी। They are very poor people, वो बहुत गरीब लोग हैं, but we can see the love of God. लेकिन परमेश्वर का जब If you go to Wanodi now, वानोडी के अगर चौक में जाते the हैं, vegetables are on the road. उनके वेजिटेबल They don't have a shop to close, उनको दुकान नहीं है बंद and करने they के have लिए। come here to pray. और वो वहाँ रख के यहाँ प्रार्थना Walking from Wanodi till here. वानोडी से यहाँ पर पैदल आए। So much zeal. इतना उनको Anybody will आवेश take है। away their vegetable, or they don't bother for that. कोई अपनी भाजी लेकर चुरा लेकर The जाएगा, shop, कोई they डर doesn't नहीं। have only so much vegetable. How much they must be earning every day? छोटा सा उनका जो है वो सब्जी बेचने का ठेला But है। God sees the heart, परमेश्वर हृदय को and देखता है। God blesses them. और परमेश्वर ने And I आशीष can भी tell करता you, है। you must be earning, I must be earning more than them. हम उनसे भी ज्यादा कमाते होंगे, But they must be, having more peace, more joy, more happiness than you and me. लेकिन उन्हें जो शांति उनके जीवन में आनंद है वो बहुत If they ज्यादा are sleeping, in 1 second they will be sleeping. सोते हैं तो तुरंत उनको नींद You आती and है। I will spend sleepless nights. हमें दिन रात की नींद That is the difference with, about the relationship with Jesus Christ and God. ये अंतर है यीशु मसीह के साथ हमारे So रिश्ते today, में। church, pray for these people that God will set them and they will have their own financial situation. They will be, zeal for the kingdom of God. और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें वहां से वह मुक्त करेगा। Now, और उनकी God is आर्थिक परिस्थितियां protecting the सुधारेगा। business. It is totally open. Only so much vegetables are there on the road.
तो रास्ते पे थोड़ी सी सब्जी लेकर बेचने के लिए बैठे। People must be coming to buy, but they are losing the money only for because of Jesus Christ. और हो सकता है लोग वहां पर आपकी सब्जी लेते होंगे, लेकिन यीशु मसीह But के for कारण- you and me, we will not leave overtime. Also, we will go to the office on Sunday. हम अगर हम आप है तो हम ओवर टाइम भी नहीं छोड़ेंगे। हम We Sunday will को not ऑफिस leave जाएंगे। our businesses on Sunday. हम अपना बिजनेस रविवार को नहीं And छोड़ेंगे। that's why your life and my life, there is no answer from the Lord. और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का जवाब नहीं आता तर है। आपण अशा लोकांसाठी आपण प्रार्थना करूया. तुम्ही आणि मी जर रविवारी जर तुम्हाला चान्स मिळाला तर तुम्ही तुमचा बिझनेस सोडणार नाही, तुमचा जॉब सोडणार नाही, तुमचा ओव्हर टाइम सोडणार नाही. आणि गरीब लोक परमेश्वरासाठी त्यांनी त्यांचा धंदा, त्यांची भाजीपाला रस्त्यावर टाकून, तिकडे त्यांची झाडू रस्त्यावर टाकून या ठिकाणी आले आणि परमेश्वर त्यांना प्रोटेक्ट करतो. त्यांना कवच आहे त्यांचा आणि त्यांचा राखण करणारा. द लॉर्ड इज देअर प्रोटेक्टर अँड गाईड. परमेश्वर उनका जो है रक्षण करता है, So मार्गदर्शक today, है। look at them and take a U-turn in your life and my life. आज उनके जीवन की ओर देखो और अपने जीवन में आप As मुड़ you जाओ। know, I went to that memorial service yesterday of that sister who passed away last Saturday night. पिछले सैटरडे को जो सिस्टर का देहांत हुआ, कल पास्टर उसके Her last words when they had food in the hotel and they were coming home, she told that there will be new earth and new heaven very soon. उसके आखिरी शब्द जब वो लौट रही थी तो ये थे कि नया पृथ्वी और नया स्वर्ग यहाँ पर। And when she was just lying down, her husband was, yesterday I spoke with the husband, just he turned on one side. और कल उनके पति के साथ वो रहते तभी वो एक बाजू में चली She गई। did not shout, she just took a deep breath and she was no more in that body. उन्होंने गहरी सांस ली, उसके बाद उनकी सांस नहीं चल रही थी। Church, we know that she was in the Lord. वो प्रभु में थी। The next breath will be in the presence of the Lord. अगली जो सांस है प्रभु की उपस्थिति में But होगी। if you and I, if we die today, आप और हम अगर आज मृत होते हैं committing in the presence of the Lord, और प्रभु की उपस्थिति में अगर जाते हैं, your commitment to the presence of the Lord, आपकी प्रभु की उपस्थिति में जो if भी you आपने कहा है, compare with that sister and you, वो बहन और आप में अगर तुलना की, where will be your place? आपकी जगह कहाँ पर Where होगी? will be my place? मेरी जगह कहाँ पर होगी? If you are into sin, अगर हम पाप में हैं, if you are into wrong things, गलत चीजों में हैं, if you are not committed in the house of the Lord, भवन में अगर आपने कुछ you कमिटमेंट know नहीं किया है, what will be your state and my state. आपका मेरा स्थिति क्या होगी? And they were showing her clips. और वो वहाँ पर क्लिप दिखा And रहे there थे। were two clips. वो दो क्लिप In दिखा that रहे clip, थे। she was telling वो वहाँ कह रही थी बहन, that I have finished my course. उन्होंने कहा कि मैं मेरी दौड़ I पूरी have कर fought चुकी a हूँ। good fight. मैंने एक अच्छा युद्ध लड़ा And I है am prepared to meet my Lord. और प्रभु को मिलने के लिए मैं तैयार In the हूँ। second clip, she was giving the message to the people of God that prepare yourself, trust on Jesus, He will never put you to shame. और दूसरे संदेश में लिखा था कि अपने आप को तैयार करो कि तुम लज्जित ना So हो। when they were showing her clips, these were the words we could, all the people who could hear and they were crying. और जब वो सब दिखा रहे थे तो लोग वहाँ पे रोते हुए दिखे। Church sitting at home and telling, I will be at home and pray. That is the lie of the enemy, the deception of the enemy to hold you away from the body of Christ. अगर आप घर में बैठ के कहते हैं कि मैं संदेश सुन रहा था प्रार्थना का, तो जो शैतान का धोखा I will है। hear this message, I will hear that message. There will be corruption in the message and you and in my life will be, totally away from the presence of the Lord. आप अलग अलग संदेश सुनते होंगे, हो सकते हैं भ्रष्ट है जिससे आपके जीवन में क्षति होगी। Wonderful testimony is this small girl who gave testimony. कितवी लाई बात हो? Huh? 7th standard. When when her father died, Sona went and preached the gospel at the time of funeral. ये After the लड़की जो है, funeral. उनके पिता के देहांत के समय जाकर के वहाँ समाचार दिया था And she used to feel that somebody is coming. She used to get fear. और उसको अक्सर कोई आ रहा है ऐसा डर लगता था। And so somebody used to see, when she used to see somebody or some, presence of the evil spirit in her life, she used to feel that she will die continuously. और अशुद्ध आत्मा की उपस्थिति उसको दिखती थी जिससे उसको But when लगता she था कि came हम in the मर presence of the Lord, the Holy Spirit touched her and you could hear the testimony of 7-year girl, और 7th standard जैसे girl. पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में आई, ये So बच्ची पूरी तरह today, से at बचाई। one time, the Lord will bring the Gentiles. They will bring Hindu, they will bring Muslim. But you and I, we are Christians from your generation. You and I will be left away. आप और मैं दूर रहेंगे अगर परमेश्वर जो है अन्य जातियों के हिंदू मुस्लिम लोगों को लाएगा उसके विश्वास में। So today, be very alert.
बहुत सतर्क The रहिएगा। days are very, very less. बहुत कम दिन If बचे God हैं। has called you, give your time, serve Him. परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो अपना समय दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। Otherwise, He will ask you what you have done for me, how much fruit you have brought for me. नहीं तो वो आपको पूछने वाला है कि आपने कितना कार्य मेरे लिए किया, कितने फल लाए। As we were studying about the altar, जैसे हम वेदी के बारे में बात कर रहे थे, and we have read last time that obedience is better than sacrifice. और विश्वास योग्यता जो है वो First Samuel त्याग से भी बलिया करके 15, लिखा था 22, वहाँ पे। 23. पहला शमूएल 15, 22, 23. पहिला शमूएल 15 अध्याय 22-23 पद। तेव्हा शमूएल म्हणाला, परमेश्वराचा शब्द पाळल्याने जसा त्याला संतोष होतो, तसा होमांनी व यज्ञांनी होतो काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पालन बरे, एडग्याच्या कफेपेक्षा वचन ऐकणे बरे. अवज्ञा जादूगिरीच्या पातका समान आहे, आणि हट्ट मूर्तिपूजा व कुलदैवताचरण यासारखं आहे. तू परमेश्वराचा शब्द मोडीला आहे, म्हणून त्यानेही तुला राज्यपदावरून जुगारून दिले आहे. So here we can see, the Saul has disobeyed the word of God, यहाँ हम देखते हैं कि राजा शॉल जो है उसने अनाज्ञाकारिता की and है। Samuel is telling him that obedience is better than sacrifice. और शमूएल वहाँ कह रहा है कि त्याग जो है उससे भी भला जो है So आज्ञाकारिता you है। and I, if we don't obey the voice of the Lord, अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता हम नहीं करते, it is no use of you and I coming in the presence of the तो प्रभु Lord. की उपस्थिति में आने का कोई भी मतलब नहीं। So today the devil is attacking every members. आज हर एक पे शैतान हमला We कर रहा can है। see there will be persecution in different places. अलग अलग जगहों में हमारे जीवनों में तकलीफ Yesterday, है। Fulsare auntie sister was telling that where there was a church of 10,000, there were signs, wonders happening. People came and they wanted to arrest the people there. और जहाँ पर 10,000 लोगों की मंडली की चर्च था, वहाँ पे लोगों को आके तकलीफ देना And है। all are non-Christian people. और सब ख्रिस्ती नहीं है वो At लोग। one time there will be persecution. एक जगह पे तकलीफ होगी। At other hand, people without you going, without I going and sharing the good news, they will be saved. God will give them vision, God will give them dream, and they will be saved. और वहाँ पे ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप हम नहीं जाते भी, वहाँ पे कार्य होगा और परमेश्वर उन्हें बचाएगा। So when suppose we are here and people are manifesting, अगर यहाँ पर हम हैं और कुछ यहाँ पे कार्य they हो will रहा है, tell that Gondu Baba or some Baba has come and they are doing this mantra tantra and all. तो वहाँ पे कहेंगे कि कोई बाबा आकर के यहाँ कुछ मंत्र तंत्र So करके all गए। these people will come and stop the church. Don't worry for that. और लोग आएंगे और ये सब कार्य रुकाएंगे। But nothing will happen in your heart and my heart. The faith what you have and I have. आप पर आपके मेरे हृदय में जो विश्वास है उसके लिए कुछ नहीं हो। They will stop you from worshipping the Lord. हो सकता है आराधना से वो आपको But in रुकाएंगे, your heart, nobody can change your heart in your life. लेकिन आपके हृदय में कोई फर्क नहीं, उसको So कोई these बदली नहीं कर things सकता। are going to happen everywhere. हर जगह पर ये चीजें होने It वाली is है going to increase और everywhere. बढ़ते जाने वाले बात। People will tell that you are converting people. वो कहेंगे लोग आपको ये लोगों को They धर्म will से stop you. बोलेंगे, They will put you in jail. वो आपको रुकाएंगे, जेल में Be डालेंगे। prepared for that. आप उसके लिए तैयार रहो, Because you have chosen for that only. आपको उसी लिए बुलाया गया है, चुना गया है। So we need to obey the voice of the Lord. आपको प्रभु की And if आवाज को आज्ञा करना we read है। 1 Corinthians 5th chapter 7th verse. कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 5 से पहले कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में देखिए, 5-7. में देखिए। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अपनी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। So Christ has offered. That's why remove the old leaven and put on the new lump in your heart. कौन सा वचन है? 7वां वचन. 7वां वचन यहाँ पर जो है पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय और 7 पद देखिए, यहाँ पर लिखा है, पुराने खमीर को निकाल लो, डालो और अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बनो। So we have to remove the old leaven, that is old nature in our lives, which will puff us, which will give pride, ego in our lives. और यहाँ पर लिखा है कि अपना पुराना मनुष्य का स्वभाव जो है उसको निकाले,
जिसके द्वारा हम नए स्वभाव In this situation, you can help each other, brothers and sisters, in their weakness and help them with the love of God to change and transform their और इस lives. परिस्थिति में अब आपके बाकी जो भाई बहन है उनको आप इस बारे Even में प्रभु तक आने के लिए 141 मदद 2 कर Psalm सकते हो। says, Sorry? 141 2 Psalm says, 141 दोन स्तोत्र संहिता म्हणत आहे, भजन संहिता 141 2 में लिखा है, Let my prayer be sent forth before thee as an incense, and lifting up my hands as the evening sacrifice. वहाँ पे लिखा है कि मेरी उपस्थिति जो है, मेरी जो आराधना है प्रभु के सामने योग्य ठहरे और एक अच्छा धूपदान के नहीं So सुगंध आए। your prayer should be going to the Lord as incense. और वहाँ पर आपकी प्रार्थना जो है वो एक And your धूपदान के lifting of सुगंधित your उपकरण प्रदान hands किया। should be as a sacrifice. Sorry? Lifting of your hands should be as a आपका हाथ sacrifice. उठाना है वो भी एक बलि के रूप में होना चाहिए। So we saw that God doesn't want that He will come in the temple of the made by a hand, और हाथों से बना मंदिर में लोग आए ये परमेश्वर की अपेक्षा नहीं है। but God dwells in your heart and my heart. परमेश्वर आपके मेरे हृदय How में we निवास should करता be है। holy in our lives. हम किस तरह जीवन में पवित्र रहे। When King David made and he sinned in his life. राजा दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया। And Psalms 51 9 verse, if you read 19 verse, भजन संहिता 51 9 में अगर आप 51 पढ़ते हैं 19 51 9 19. और 19 में If you read that, he's telling, then should thou be with sacrifice of righteousness with burnt offering. त्यांचे नीतिमत्वपूर्वक केलेले यज्ञ होमबली, निश्चयपणबली तुला आवडतील, मग ते तुझ्या वेदीवर गोडे आणतील. First he's telling, when King David sinned and he committed adultery, राजा दाऊद ने जब पाप किया व्यभिचार किया at that time what God has given him repentance. और उसमें परमेश्वर ने उसे So किस तरह today पश्चाताप whatever किया। your sin is, जो भी आज आपका पाप हो, whatever you have gone away from the Lord, जिस भी तरह परमेश्वर से अलग whatever हो गए you हो, have been backslided in your life, आपके जीवन में आपकी पिछाड़ हुई but है। when King David understood and he came into his senses, जब राजा दाऊद अपने होश में आया उसको ये बात समझ में ज्यावेळेस आई। प्रभू दावीद राजाने व्यभिचार केला, पाप केला आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस त्याला पश्चाताप झाला, त्यावेळेस तो त्याला समज झालं, त्यावेळेस तो म्हणत आहे की मी देवप्पा माझं एक नीतिमत्वाचं मी तुला त्याग करत आहे. और वहां पर राजा दाऊद ने जो समझ लिया इस बात को, तब उसने कहा कि मैं मेरा जो भी कुछ In नीतिमत्व उसका English, त्याग कर रहा read हूं। the first part. Then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit, with burnt offerings. हाँ बस. He's telling with burnt offering, with righteousness you are going to sacrifice. वो वहां कहता है कि जो भी बलि चढ़ाई है अपने आग में, उसके First द्वारा thing त्याग what he किया है। did, उसने सबसे पहले क्या किया? first thing with righteousness, पहले नीतिमत्व कैसे उसने with किया? humbleness, विनम्रता थी, with forgiveness, क्षमा याचना थी, with repentance, पश्चाताप था। he did burnt offering for his physical body, अपने शरीर के लिए उसने वहां पर जो है आग में for बलि his चढ़ाई, spiritual body. आत्मिक जीवन के लिए। And then second part is there, और दूसरा उसका भाग जो है, after that, उसके पश्चात then shall they offer bulls upon the altar. और उसके पश्चात उन्होंने जो है वहां पर बैलों की So बलि first चढ़ाई। thing, when you and I sin in the presence of the जब Lord, प्रभु की उपस्थिति में आप और मैं when पाप you करते and हैं, I go away from the presence जब of हम the प्रभु की Lord, उपस्थिति से दूर जाते हैं, first thing you need to burn yourself and myself in your flesh. और सबसे पहले हम अपने आप को जो हमारा स्वागत There should be a burnt sacrifice for your physical body and your spiritual body. वो आपके शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए वो जो बलि है, And the sweet aroma will go, तुमच्याकडून एक सुगंध परमेश्वराकडे जाणार. परमेश्वर के पास एक उसकी सुगंध चली When your जाएगी। flesh will be burnt, जब आपका ये शरीर जलेगा, when your flesh desires will be burnt, उसकी आकांक्षा जलेगी। when you repent, जब आप पश्चाताप ज्यावेळेस करते तुम्ही हो, पश्चाताप करणार आणि तुम्ही तुमच्या पापांची कबुली देणार आणि तुमच्या देहाला तुम्ही जाळून टाकणार, जब आप पश्चाताप करते हो, अपने पापों की कबूली देते हो, अपने शरीर को जलाते हो, the Bible is telling that is the righteous sacrifice you need to do, I need to वही do. शास्त्र कहते हैं वो सबसे उत्तम नीतिमान बलि है। Today, many men of God and women of God are into sin in their thoughts, in their heart, in their mind.
आज परमेश्वर के अनेक जन हैं जो विचारों में, मनों में, शरीर में पाप करते हैं, And God doesn't want that sacrifice or the altar anywhere, but it is in your heart. परमेश्वर को ऐसी वेदी नहीं चाहिए. 1 Peter 2nd chapter 5th verse. पहिला पेत्र दुसरा अध्याय 5वां वचन. पेत्राचं पहिलं पत्र 2 अध्याय आणि 5 वचन पाहूया. तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो. In Marathi. तुम्ही सदा जिवंत धोंड्यासारखे आध्यात्मिक मंदिर मराठी ट्रान्सलेट करून दे. मराठी ट्रान्सलेट करून भेटेल. द्वारे देवाला कर आवडणारे आध्यात्मिक यज्ञ अर्पण्यासाठी तुम्ही पवित्र याजक बनवा. You have to be the holy priest acceptable to the Lord. आपल्याला पवित्र पुरोहित होणं हे स्वीकारण्याकरता गरजेचं And आहे. that's why God is telling you, as Christ has become the chief cornerstone, आणि त्या ठिकाणी वचन सांगतं की तो कोपऱ्याचा दगड झाला you and I, we are also holy priesthood in the hands of the Lord. आणि आपणही ते पवित्र पुरोहित परमेश्वराच्या राज्यात हातात त्याच्या होणं And, गरजेचं आहे. and that's why we read Galatians 3:13. इसलिए हम गलती की पत्री 3:13 में देखते हैं. गलती की पत्री 3 अध्याय 13 पद में That we देखते हैं see that Christ has become, died as a cursed dead on the cross of Calvary, and it has been written, cursed is the person who have died. इसलिए ऐसा लिखा है कि प्रभु येशू ख्रिस्त मसीह उसने क्या किया, शापित मृत्यू, त्यांनी काय केलेलं आहे, शापित मृत्यू घेतलेला आहे. आणि असं म्हटलेलं आहे की शापित आहे जो मनुष्य जो झाडावर किंवा त्या फांदीवर किंवा क्रूसावर मेलेला आहे. वहां पर लिखा है कि जो शापित है जो मनुष्य जो क्रूस पर लटका कर मर जाता है. And Matthew 20:28 says that even as the Son of Man came not to minister unto but to minister and give his life as ransom for many people. असं म्हटलेलं आहे 20 अध्याय 28 वचनामध्ये की देवाचा पुत्र ह्या जगामध्ये आलेला आहे लोकांकडून सेवा नाही करून घेण्यासाठी पण लोकांची सेवा देण्यासाठी आणि लोकांसाठी जीवन देण्यासाठी. That is the why Jesus Christ came in this world. मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय 28 पद में लिखा है कि परमेश्वर वो जो है हमें सेवा करने के लिए, हमसे सेवा करने के लिए नहीं है. So today you and I, we need to make a decision in our life that nobody should serve you but you should serve others. आज तुम्हाला आणि मला हा निर्णय घ्यायचा जीवनामध्ये की आपण दुसऱ्याची सेवा करायची की आपण सेवा करवून घ्यायची. Now suppose we all are priests, royal priesthood, we are apostles, we are the we are the apostles, we are the teachers, we are the shepherd, we are all having fivefold ministry today. आज हमारे आत्मिक जीवन में 5 किस्म की सेवाएं हैं. You are the prophet also. आप If you read 1 Corinthians 4th chapter 9 to 11th 17th verse. कुरिन्थियों की पहली पत्री 4 अध्याय 9 से 17 First पद we'll तक पढ़ते read the हैं. 9th verse. उससे सबसे पहले हम 9वां वचन पढ़ेंगे. English, Hindi, Marathi we'll read. कारण मला वाटते देवाने आम्हा प्रेषितांना शेवटच्या जागेवरचे आणि मरणात नेमलेल्यांसारखे करून पुढे ठेवले आहे. कारण आम्ही जगाला म्हणजे देवदूतांना व माणसांना जणू तमाशा असे जागो आहोत. The altar you are going to be in your house, a place, and in your body. तुमच्या जीवनामध्ये जी वेदी आहे ती घरात किंवा शरीरात आहे. What it should be? वो किस तरह होना चाहिए. Here it is written, therefore I think that God has sent forth us an apostle last. और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आखिर जो है वो प्रेषितों को लिखा So गया today है. as a pastor, I am standing here, I am a last thing here. आज पास्टर के नए खड़ा रहने के बाद हम सबसे आखिरी हैं. As an apostle, I will be last here. प्रेरितों क्या सबसे आखिरी हैं. As a prophet, I will be last standing here. अगर संदेशा है तो सबसे आखिरी है. As a shepherd, I will be last here. मेषपाल है सबसे आखिरी है. As a sheep, I will be standing as a last here. भेड़ है तो सबसे आखिरी है. But what is my first? सबसे मेरे जीवन में प्रथम स्थान किस लिए है. Tell me. किस लिए है. That I was appointed to death.
कि हमारा मृत्यु के लिए हम सुनिश्चित So you and I, we have called to serve the Lord. तुम्हाला आणि मला अपोस्टल किंवा प्रेषित किंवा संदेष्टा किंवा मेंढपाळ कशासाठी बोलवलेलं, शेवटलं ते डेझिग्नेशन किंवा डिग्री, बट फर्स्ट थिंग यू टू डाय. आप लोग को हमें जो है विशेष रूप से प्रेरित शिक्षक या जो भी कार्य के लिए बुलाया गया है वो सबसे आखिरी है. So पहला जीवन और if पहला as a pastor you have a ego, अगर you are pastor- not a man of God or woman of God. अगर आप परमेश्वर के सेवक है और आप में अगर गर्व है If तो आप उसके जन नहीं हो. somebody disrespects you, you get hurt. अगर आपको कोई अपमान करता है तो आपको दुख होता है. Paul is writing, you are called last for your designation. संत पौल सांगतो की तुम्ही सगळ्यात शेवटी You are बोलवलेले called last for as a brother to be called or sister to be एक called. बंधू म्हणून तुम्ही सगळ्यात शेवटचे आहात. But first you need to die. सर्वप्रथम तुम्हाला मेलं And पाहिजे. because of that you need to be the altar in your body. त्याच्यासाठी तुमच्या जीवनामध्ये प्रथम वेदी हवी That आहे. means death should be in your body. मरण तुमच्या जीवनामध्ये हवं आहे. That means, you are making a place there you are going to die every day for yourself. आणि तुम्ही एक अशी जागा बनवा त्या ठिकाणी तुमचं रोज मरण होत In असतं. your house you are going to set a place. घरात एक अशी जागा I बनवा. don't know how many have started that. तुम्ही पैकी किती लोकांनी सुरू केलं But मला if you are माहित not नाही. going to start, that means, your eyes are blinded. I'll come to that verse. You will be deaf. You will hear the voice, but nothing will change in your life and my life. And you will slowly backslide in your spiritual life. जर अजूनही तुम्ही ते कार्य सुरू केलं नसेल तर तुम्ही अंधार ते वचनाची So today, if you have not that forcefully, make a place in your house and start praying in that place. Make that place holy, and you will have changes in your life and my life. आणि जर तुम्ही स्वतःला जोर देऊन ती जागा बनवली आणि त्या जागेमध्ये तुम्ही ते कार्य सुरू केलं तर तुमच्या So जीवनामध्ये first, बदलाव St. येईल. Paul is telling, the last is my call, and the first is my death. संत पौलुस कहता है कि सबसे पहला जो है मेरा बुलावा है, उसके बाद मेरा मरण है. And he's telling the second part that we are made spectacles unto the world, unto the angels and man. आणि तो म्हणत आहे की आम्हाला तमाशा बनवलेला आहे या जगासाठी, देवदूतासमोर आणि मनुष्यासमोर. Are you ready to be called yourself Christian? संत पौलुस कहता है कि हमें लोगों के सामने तमाशा बना गया है. Read in Hindi and Marathi, second part of 9th verse. चार, 1 Corinthians 4 chapter 9th verse का second part. कारण आम्ही जगाला म्हणजे देवदूतांना किंवा माणसांना जणू तमाशा असे जाणवा. You and I, we are going to be a spectacles in front of the angels, man and the world. मनुष्यों के लिए, जीवन के लिए और समाज के लिए हम जो है तमाशा बन चुके हैं करके लिखता है इस भाग में. English. क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं. So, We became a spectacle to the entire world, to people and angels alike. so day and night, you and I, we need to be mocked by people. दिन रात हमें लोगों से दूषण दिया Are जाएगा. you ready to accept Jesus or deny Jesus? तुम्ही येशू ख्रिस्ताला स्वीकारण्याची तयारी Do का you हक्क want नाकारण्याची position तयारी? in the church? तुम्हाला मंडळीमध्ये काय Do जागा you हवी want, आहे? position in everywhere in your life? जीवनामध्ये प्रत्येक ठिकाणी मोठं स्थान हवं आहे. The message what is I'm preparing, it is taking so long. जो संदेश पास्टरांनी बनवला But the त्यासाठी वेळ लागतो. altar sacrifice is this for you and me. आणि जी काही वेदी आहे त्या ठिकाणी जे बली आहे If ते your सगळं आपण द्या. mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law mocks at you, speaks with you against, insults you, what is going to happen to you? जर तुमचे नातेवाईक जे आहेत ते जर तुमचा अपमान करतात आणि तुम्हाला त्रास देत असतात तर If तुमच्यामध्ये they काय will होत mock, असेल? can you be a spectacle? Can you will be like a tamasha in front of them? जर त्यांनी तुमची थट्टा केली तर तुम्ही त्यांच्यात तसं होऊ शकता का? If in your altar, in your house, if the Holy Spirit dwells, God will give His grace to you to be mocked, to be put you to shame in front of the others, in front of the church, in front of the whole world. Are you ready for that? ज्या ठिकाणी तुम्ही वेदी बनवली आहे त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा स्थित आहे तर तुम्हाला यामध्ये सहन करण्यासाठी कृपा देत आहे. If you read it, verse 10 says, we are fools for Christ's sake. आम्ही ख्रिस्तामुळे मूर्ख, तुम्ही ख्रिस्तामध्ये शहाणे. Let other people be wise
and you and I become fools for Jesus Christ. और लोग सयाने हो, लेकिन हम जो है यीशु मसीह के लिए हो सकता है मूर्ख ठहरे। We are weak, but they are strong. हम लोग कमजोर है, लेकिन वो We are शक्तिमान हैं। honorable, but they are honorable, but we are despised. हम जो है सबसे दुर्बल ये कमजोर ऐसे हैं, Even unto उन्हें this- मान सम्मान है So you will become fool in front of the world. कि हम दुनिया के सामने मूर्ख ठहरे, You will be weak in front of the world. हम उनके सामने कमजोर रहे, You will be despised in front of the world. दो लोगों के सामने हमें दूषण दिया जाएगा। Are you ready to have your call in your life as apostle or prophet or a shepherd or a teacher or an evangelist? कि यीशु मसीह में इन सब के होने के पश्चात आप उसकी जो सेवाएं हैं उसमें खड़े रहने के लिए Saint तैयार Paul is हो। telling that is last. My designation is last. संत पौल कहता है कि ये सारी पदवियां मेरे लिए सबसे Sometimes आखिरी the हैं। younger people will come and teach you. हो सकता है युवक आकर के कार्य करें, Young people will come and teach you. युवक लोग आकर आपके सिखाएंगे। Are you ready to accept that thing? क्या आप उसे स्वीकारने के लिए Because तैयार हो? God will speak through anybody to you and me. परमेश्वर आप में से किसी के साथ भी बात कर सकता है। Tomorrow, God will touch Pappu also. हो सकता है And God will use him more mighty than you. हो सकता है पप्पू के जीवन में Will you be परमेश्वर ready to शक्तिशाली be कार्य under करे। him if God uses him? अगर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है तो क्या उनके नीचे आप रहने That के is लिए तैयार the हो? ministry God has called you and me. और इसी सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। Those who have been rejected, those who have been despised, those who are weak, those who are put to shame, God is going to use them, lift them up for His kingdom. जे गरीब आहेत, दरिद्र आहेत, अबलवान आहेत, त्यांच्यासाठी परमेश्वर वापर करणार। 11th verse. 11 वचन पाहूया। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते नहीं नहीं, 11. या घटकेपर्यंत आम्ही भुकेले तहानलेलोय व उघडे बागडे आहोत. आम्ही डोसे खात आहोत. आम्हाला घरदार नाही. Now we can see you must be not having your own house. हो सकता है आपके पास अपना You घर ना must be हो, staying on rental place. आप भाड़े से रहते हो। Sometimes you must be not having food. खाना कभी कभी नहीं मिलता होगा, Sometimes there may be hunger. कभी कभी भूख Sometimes होगी। you may be thinking, what will be my next Yeah. expenses, whether I can meet or no. अगला मेरा खर्चा मैं पूरा कर If पाऊंगा या it नहीं। is this thing in your life, अगर ये चीज आपने if जीवन Christ में, is in your life, यीशु मसीह आपके do जीवन में not है, compare yourself with the rich people in the church. अमीरों के साथ अपनी तुलना मत करो। Those who have their own house. जिसको अपना खुद का घर But है, God has kept you there. आपको जहाँ पर रखा है, He has kept you without house. आपको उस बगैर घर He के has रखा है। kept you on the rental house. हो सकता है आप भाड़े से रहते You हो, may be having hungry and thirsty. भूख लगती होगी, प्यास There लगती may होगी, be no money for you to go to doctor to pay your bill. डॉक्टर के पास जाकर पैसा देने के लिए आपके पास पैसा But नहीं God होगा। is, the Saint Paul is telling, we are that. We were hungry, right? Now he's telling we संत were पौल म्हणतो hungry. की आम्ही त्या ठिकाणी भुके होतो, आम्ही त्या ठिकाणी मार खात होतो आणि आम्ही त्या ठिकाणी जात होतो। इंग्लिश मध्ये असं लिहिलं, इवन अन टू दिस प्रेझेंट आवर वी बोथ वर हंग्री अँड थर्स्टी. म्हणजे सेंट पॉल मी स्वतः भुकेला आणि तानेला होता एवढा मोठा देवाचा सेवक. संत पौल जो परमेश्वर का इतना प्रभावी सेवक था, वो भी भूखा इफ पैसा यू रहता। कंपेयर विथ सेंट पॉल एंड यू, अगर how संत many- पौल और आपके बीच में अगर how आप many तुलना days करें, you starved, how many days you were having thirsty. कितने दिन आपने भूख प्यास सही है। So today, God is teaching us how we should become our body as a living sacrifice or altar of the Lord. आज परमेश्वर में सिखा रहा है कि उसकी वेदी पर हम वो जीवित बलि के Even रूप you में don't किस have तरह रह house, सकते हैं। praise God, thank God, you have eternal house. आपको एक हमेशा का घर है परमेश्वर This में। worldly house will perish, ये जग का जो घर है खत्म but हो the जाएगा। eternal house nobody can take away from your life and my life. त्या नित्यतेच्या भवनामधून तुम्हाला कोणी काढणार नाही। 12th verse. 12 वचन, आम्ही आपल्याच हातांनी कामधंदा करून श्रम करीतो. आमची निर्वस्त्रता होत असता आम्ही आशीर्वाद देतो. आमची जळवणूक होत असता आम्ही ती सहन करीतो. You and I, we may be laboring, तुम्ही आणि मी कदाचित त्रास काढत असू, but other people must be prospering. बाकी लोकांची उन्नती होत Their असेल, salary may be higher than yours. त्यांचे पगार मोठे मोठे असतील, They are junior, but they may be getting more promotion. ज्युनियर असतील पण त्यांना प्रमोशन मिळत असेल। God is allowing that thing to you and me परमेश्वर हे होण्यासाठी मदत करत आहे, because He wanted you to be last apostle, last prophet,
first to suffer for Christ. आणि पहिलं परमेश्वर ख्रिस्ताकरता त्रास काढणं आणि बाकीच्या ह्या पदव्या People must नंतरसाठी be ठेवणं. mocking at you. परमेश्वर लोक तुम्हाला त्रास You देत must be असतील. working day and night. दिवस रात्र तुम्ही काम There करत may असाल. be no support of your husband, your wife, your children, your in-laws, your mother and father. You may be alone, struggling, working hard to earn money, but there is no blessings. There is no success in your life. जीवनामध्ये घरचे सर्व लोक तुम्हाला त्रास देत असतील, तुम्ही एकटे काम करत असाल, पण तुमच्या There may be no success in यश your दिसत नसेल. education. शिक्षणामध्ये सुद्धा यश There may नसेल. be no success in your job. नोकरीमध्ये यश There may नसेल, be no success in your promotion. तुम्हाला प्रमोशन मिळत In your नसेल, family also. कुटुंबामध्ये तसंच What you असेल. expected there, it will not happen in जी your अपेक्षा life. तुम्ही केली ते जीवनात होत But Paul नसेल. is telling that first I have to suffer, and then is my calling, then is my election, and then is my designation. संत पौल सांगतो की पहिलं मला मरण आहे, त्याच्या पश्चात मला जे काय बाकीच्या माझ्या जबाबदाऱ्या आहेत, जी पदवी आहे 13th त्या. verse and 13th verse we'll read. 13वं पद आपण वाचूया. आमची निंदा होत असता आम्ही मनधरणी करीतो. आम्ही जगाचा गाळ सर्वांची खरवड असे आजपर्यंत झालो आहोत. So we were defamed and ill-treated. यहाँ पर लिखा है कि बदनाम किए जाते हैं. So praise God for that. परमेश्वरच्या करता स्तुती करूया. And 14th verse. तुम्हाला लाजविण्यासाठी मी हे लिहित नाही, तर माझ्या प्रिय मुलांप्रमाणे तुम्हास बोध करण्यासाठी लिहितो. Here, as I told you before that, we need to call the people who are teaching you as father and mother. या ठिकाणी जे लोक तुम्हाला शिकवतात त्यांना आई वडील असं What St. Paul संबोधन. is telling, you are my sons. संत पौल सांगतो की तुम्ही माझी मुलं आहात. And Christ is telling, do not call, don't get mingled with that thing and come into wrong teaching and wrong doctrines. यीशु मसीह कहते हैं कि गलत लोगों के संगति में That जो father गलत सीख आ and जाए. the son and this father's relation is totally different. वो पिता और ये पिता का रिश्ता He जो is है God अलग-अलग. Jehovah. Nobody can take the place of God Jehovah. जेव्हा परमेश्वराची जागा कोणी घेऊ Even शकत नाही. son cannot take the place of father, and father cannot take the place of Jesus Christ. त्याच्या पुत्राची जागा सुद्धा पुत्र सुद्धा परमेश्वराची जागा घेऊ शकत And the Holy नाही. Spirit will take his own place. पवित्र आत्मा स्वतः आपली जागा So घेईल. here he is telling, I am not making you put to shame by telling all these things, but I warn you as my sons. यहाँ वो कहता है कि यह मैं तुमको लज्जित करने के लिए नहीं So लिख Saint रहा हूं. Paul was having many sons. संत पौल को बहुत सारे बच्चे थे. So today you and I, we will have many children spiritually. आत्मिक रूप से हमें बहुत सारे बच्चे But होंगे they should not give you importance of God. और वो आपको परमेश्वर के नहीं ना If they समझे. will give you importance of God, you and I, we both will fall down. अगर आपको उतना महत्व दिया जाएगा तो हमारा पतन होगा. 15th verse. 15वां पद अगर देखते हैं, कारण तुम्हास ख्रिस्तामध्ये 10,000 गुरु असले तरी पुष्कळ बात नाही. मी तर तुम्हास ख्रिस्त येशूमध्ये सुवार्तेच्या योगाने जन्म दिला आहे. Who has given you birth? That who is your father? The person who is mentoring you, he becomes your father because he has given you birth. He is mentoring you. He or she is mentoring you. जिसने भी आपको जन्म दिया वो माता पिता होने की वजह He जिसने told आपको there शिक्षण should दिया. not be more fathers. Sorry? He is telling there should not be more fathers वो कहता है कि बहुत पिता आपको because ना हो, I have given you birth. क्योंकि उन्होंने There उसको will be आत्मिक more बल दिया. instructors. वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक होंगे. 10,000 instructors will be there. 10,000 शिक्षक हो So सकते that हैं. you and I, we should have only one father spiritually, not 10 fathers. आत्मिक रूप से हमें सिर्फ एक पिता होना चाहिए. And 10 नहीं. because of that, you will go in a different areas of your life if you have 10 fathers in your life. अगर 10 पिता जीवन में है तो आप 10 अलग अलग मार्गों में चले जाओगे. So understand these things. And verse 16 says, 16 पद कहता है, म्हणून मी तुम्हास विनंती करीतो की तुम्ही माझे अनुकरण करणारे व्हा. St. Paul is telling, whatever I do as I walk, you follow me. संत पौलुस कहता है कि यहाँ पर जो है आप मेरा आचरण का अनुसरण करो. So now we cannot follow many pastors looking at their lives, अनेक पासवानों की नहीं देखते हुए हम उनकी many अनुसरण नहीं कर apostles सकते. looking at their lives, अपने जीवनों को देखते हुए हम many उनकी ओर नहीं जा prophets सकते. looking at their lives. बहुत सारे संदेश थे उनके ओर नहीं But देख Paul सकते. is telling, follow me because I am teaching you. और संत पौलुस कहता है कि मेरे अनुसरण करो क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ. Verse 17. 17 पद देखिए. या कारणास्तव मी तिमोथेला तुमच्याकडे पाठविले आहे. तो
प्रिय व प्रभूचे ठाई विश्वासू पुत्र असा आहे. मी सर्वत्र प्रत्येक मंडळीत शिकवितो. त्याप्रमाणे ख्रिस्तातील माझ्या शिक्षण पद्धतीची आठवण तो तुम्हाला देईल. So he is telling that my son Timothy I am sending to you, और वो कहता है कि मेरा बेटा तिमोथी को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, and he is going to teach you because I am teaching wherever I go. I am teaching the gospel. जो भी शुभ संदेश मैं सुनाता हूँ वो आपको सिखाएगा. Now I will read one last Romans 13:1-7. रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 से 7 पद, यह आखिरी हिस्सा हम आज पढ़ेंगे. रोम परस पत्र 13 हर अध्याय. एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर के ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं. No, we will read one verse. पहिला वचन खाली. प्रत्येक जणाने वैश्य अधिकाराच्या अधीन असावे, कारण देवापासून नाही असे अधिकार नाही. जे अधिकार आहेत ते देवाने नेमलेले आहेत. So in building your altar, you need to be subjecting to the person who are under, who is above you in the church. और वेदी बनाने के लिए जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है उसके नीचे आपको कार्य करना होगा. For there is no power but of God. और वो परमेश्वर की शक्ति है. God has given the power to the apostles, to the prophets. It is not their own power, but the power of God. Please understand that. प्रेरितों को परमेश्वर ने शक्ति दी, वो उनकी शक्ति नहीं, परमेश्वर ने शक्ति प्रदान की थी. The power of that are ordained of God. और वो जो है परमेश्वर के So द्वारा. anybody who is ordained as a pastor, or it is man is not ordaining them, but God is ordaining them, and you need to be under them. जब भी किसी को नियुक्त किया जाता वो परमेश्वर के द्वारा किया जाता और हमें उनके नीचे कार्य करना Second है. verse. म्हणून जो अधिकाराला आड येतो तो देवाच्या व्यवस्थेस आड येतो, आणि आड येणारे आपणावर दंड ओढवून घेतात. Many people they oppose the word what I preach here. यहाँ से जो संदेश दिया जाता है बहुत लोगों को पसंद नहीं Many आता, people उसका may विरोध be होता है. mocking at that. हो सकता है उसको But what Bible is telling, पवित्र शास्त्र क्या कहता whoever है? therefore resists the power, जो भी शक्ति का विरोध करता है he is resisting the ordination of God. तो परमेश्वर की नियुक्ति का विरोध The करता है. God who has ordained, he is resisting or he is against them. जो भी उसको नियुक्त किया गया उसके And if खिलाफ हो they जा रहा है. resist, they will receive damnation. अगर विरोध करते हैं तो उनको नकारा जाएगा. So please understand, if you don't like, keep quiet. अगर आपको पसंद नहीं तो आप शांत रहिए. Come and talk with me. मेरे साथ बाद में आकर बात Do कीजिए. not gossip among yourself. आपस में संदेश के And समय बात even ना if you कीजिए. discuss, you are going to bring damnation on yourself. अगर आप संदेश के दौरान आपस में बात करते If हो you तभी भी आप mock, पे दोष you लगाया are जाएगा. mocking the Holy Spirit. अगर दोष लगाते हो तो आप पवित्र आत्मा को Third दोष लगाते हो. verse. तीसरी बात, कारण चांगल्या कामाला अधिकाऱ्याची भीती असते असे नाही, तर वाईट कामाला असते. तेव्हा अधिकाऱ्याची भीती नसावी अशी तुमची इच्छा असल्यास चांगले ते कर, म्हणजे त्याच्याकडून तुझी प्रशंसा होईल. For the rulers are not a terror, they are telling. Sometimes I become very harsh and rude with you. कई बार मैं आपसे कठोर रहता हूँ. So here he is telling you are not terrorist. आप यहाँ लिखा गया कि आप अतिरेकी नहीं है. Just try to understand you. The rulers are not terrorists. और वहाँ पे जो राज्य करता है वो अतिरेकी नहीं है. Terrorist to the evil. He is not telling to anybody, but to the evil those who are disobeying. और अशुद्ध बातें जो है उसके लिए जो है, Will they be afraid of him? और जो भी उसके लिए भय खाता है, Afraid of the power of the anointed? जो भी आपको अभिषेक है उसकी शक्ति को जो नकारता Fourth है. verse we will read. चौथा वचन हम पढ़ेंगे. कारण तुझ्या हितासाठी तो देवाचा सेवक आहे. पण जर तू वाईट करशील तर त्याची भीती बाळ. कारण तो तलवार व्यर्थ धारण करीत नाही. तो तलवार व्यर्थ धारण करीत नाही. तर क्रोध दाखविण्याकरिता वाईट करण्याचा सूड घेणारा असा तो देवाचा सेवक आहे. For he is the minister of God to thee for good. वो परमेश्वर अब जो है परमेश्वर का सेवक है अच्छे के लिए. But if thou do that which is evil, अगर आप अशुद्ध कार्य करते Bible हो is telling you will be afraid. आप डर खाओगे, भय खाओगे. For he beareth not the sword in vain. और वो जो है वो That तलवार means जो है he is व्यर्थ not नहीं पकड़ता है. controlling you in vain.
it is for your good purpose. और वो जो है आपको जो आपको ऊपर आपको अधिकार में रख रहा है वो व्यर्थ नहीं है, For उसको कोई अधिक अर्थ है, for he is the minister of God, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। a revenger to execute wrath upon him that do evil. जो गलत करते हैं उससे उनके ऊपर वो So man of बदला लेने God के लिए योग्य है। and the woman of God और परमेश्वर के जो जन who are हैं, dealing very strictly with the believers, जो विश्वासियों के साथ कठोरता से काम Bible is करते हैं, telling they are using the sword of God वो पवित्र शास्त्र कहता है कि वो परमेश्वर की तलवार not to इस्तेमाल कर harm रहे हैं, you, आपको तकलीफ के but लिए to नहीं, change your ways. आपके मार्गों को बदली करने के For लिए। that do not fear. इसलिए डरो मत। So in your altar also Bible is telling that we need to obey the man of God, woman of God, and lead them so that you will be success in your altar. When you sit for prayer, God will speak with you. पवित्र शास्त्र सांगतात की जी वेदी आहे त्या ठिकाणी परमेश्वराचे जे जन आहेत जे तुम्हाला गोष्टी समजवतात शिकवतात त्यामधून बोध घेऊन त्यानुसार चालणं Fifth गरजेचं आहे। verse. म्हणून क्रोधामुळे केवळ नव्हे तर सतसत विवेक बुद्धीमुळे Ha. So you should not get scared for the man of God only because of fear, but for your conscience sake. आपके मन के अनुसार आप उसको सिर्फ डरना नहीं है लेकिन उसको समझ लेना है। For your conscience should be pricked. आपका विवेक जो है उसको Day and night you should be restless in your conscience. आपके विवेक को स्पर्श होना चाहिए, दिन रात आपका Hearing the विवेक message, you बेचैन should होना not चाहिए। get scared or fear, प्रभु के जन से आप डरना नहीं है, but your conscience sake. आपके विवेक से आपको डरना है। Sixth verse. छठा पद, या कारणास्तव तुम्ही करही देता कारण अधिकारी देवाची सेवा करणारे आहेत व ते ह्याच सेवेत तत्पर असतात। सातवं वचन. ज्याला जे द्यावयाचे ते त्याला द्या, ज्याला कर द्यावयाचा त्याला तो द्या, ज्याला जका द्यावयाची त्याला ती द्या, ज्याचा धाक धरावायचा त्याचा धाक धरा व ज्याचा सन्मान करावायचा त्याचा सन्मान करा। So that's why verse 6 says, और छठे पद में लिखा है, हिंदी 6-7, रोमी 17-6-7, 13-6-7. कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए They are only doing ready to make शासन or correcting people. वो लोग जो है परमेश्वर की सेवा में लोगों को सही करने के कार्य हाँ। करते रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसका कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। For this cause pay ye tribute to them.